So in the very last class, I discussed about different internal security challenges that India is facing. And I have discussed that the interlinking of geographical factors, historical factors, political, social factors, ethnic factors, cultural and religious factors, and economic factors as well. They have given birth to a very diversified and complicated and complex nature of internal security threats for the Indian subcontinent. And these threats, I can summarize these type of threats into different types. They are terrorism, militancy, insurgency, religious fundamentalism, left-wing extremism, communal violence, organized crime, coastal security, cyber security, and economic crimes. जहाँ जहाँ मैं डिस्कस कली, it will form 1/3, 33%, 1/3 of your internal security syllabus. When I will cover all these topics plus topics from border management, that means border management challenges with Nepal, with Bhutan, with Myanmar, Bangladesh, Pakistan, and China. All these things comes under border management plus disaster management. These three things combiningly constitute of your internal security syllabus. And in each and every exam, in each and every year, in OPSC as well as in UPSC, definitely you will be getting questions from these sections. From border management, UPSC is every year UPSC is asking one question. Disaster management, sure shot, definitely you will be getting one question. From all these type of issues like communal violence, cyber security, these non-conventional type of security issues, एथुरु मध्य गोटे क्वेश्चन पाइबे. तो OPSC UPSC ପାଇଁ एटा बहुत इंपोर्टेंट. ठीक भाबरे ए सब्जेक्ट को बुझंतु so that easily बहुत किछि मार्क स्कोर करि पारिबे. So I discussed that different factors they contributed to different type of security issues in India, and these issues are terrorism, militancy. Let's discuss one by one. First, hame bujhiba ki what do you mean by terrorism? Simply terrorism koile terrorism comes from a word that is terror. Jodi root word dekhiba terrorism ra, then it comes from the word that is terror. Terror means to create fear in the mind of people. ताले केमती fear create करि पारिबे? Fear केमती create करा जाय पारिबो? There are many ways. Bomb blast कहंतु, killing कहंतु, attacks कहंतु. So in the recent past, India has witnessed many type of terror attacks or terrorism. गुरदासपुर attack कहंतु, उरी attack कहंतु, बा जम्मू कश्मीर रे बहुत प्रकार terror attack होछि. केवल जम्मू कश्मीर नुहे, apart from जम्मू कश्मीर, India from each and every nook and corner of India, it is facing terrorism activities and issues related with terrorism. Next concept am pakare achi, that is militancy. Militancy, it comes from the word that is militia. It has been originated from the word which means militia. Militia means they have certain ideology. गोटे पर्टिकुलर प्रॉपर आइडियोलॉजी ऊपर समाने काम करंती, and in general they are civil organizations and they reorganize themselves as a pattern of army हिसाब रे समाने निजो को reorganize करिथांती एवं समानकर किछि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी थाय. जेमिति कि जम्मू कश्मीर रे होतबा मिलिटेंसी रे समानकर गोटे पर्टिकुलर आइडियोलॉजी अछि कि they will always go against the security forces. यदि मिलिटेंट आउटफिट देखिबा जम्मू कश्मीर रे ताले लश्कर ई तोयबा एलईटी, हिजुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, इनती अनेक टेररिस्ट आउटफिट माने अछन. थर्ड पॉइंट इंसर्जेंसी. ये प्रत्येक टॉपिक ऊपर हमर डिटेल्ड एनालिसिस हम सिलेबस रे अछि. एटी खाली गोटे ब्रीफ व्यू दउची कि व्हाट आर द टेररिस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन इंडिया. तो ब्रीफ व्यू परे हमें देखिबा जेतेबेले जो टॉपिक डील करबा सेतेबेले हमें पढिबा कंप्लीटली. साइबर सिक्योरिटी ऊपर कंप्लीट क्लास रहइबो, कोस्टल सिक्योरिटी ऊपर क्लास, इकोनॉमिक क्राइम ऊपर क्लास, तो ये सब ऊपर हमर क्लास रहइबो. गोटे पर गोटे आम डिस्कस करबा. आज खाली गोटे व्यू नबा आमे कि कोन कोन सिक्योरिटी इश्यूज हेई पारे इंडिया रे, कोन कोन सिक्योरिटी इश्यूज आमे फेस करछन. थर्ड इज इंसर्जेंसी. इंसर्जेंसी गोटे वर्ड रू क्रिएट हेछि, ओरिजिन हेछि, दैट इज इंसर्ज.
इनसर्ज रो मीनिंग होची इनसर्ज मीन्स टू राइज अप ताले कथा ला एठी कहा अगेंस्ट राइज करिवे हु विल राइज अप एंड अगेंस्ट हुम कहा अगेंस्ट राइज करिवे जेतेबेले गोटे ग्रुप ऑफ पीपल से माने निजको डिक्लेयर करिवे दैट दे आर रिबेल ग्रुप्स एंड दे विल स्टार्ट राइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट रे जेतेबेले से माने राइज करबा स्टार्ट करबा हमें से ग्रुप को इंसर्जेंसी बोली कहबा एंड इंसर्जेंसी इन इंडिया इंसर्जेंसी इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स डिस्कस करबा अपन तो एमानकर ओरिजिन हबार मुख्य कारण कोन दे डोंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन दे डोंट बिलीव इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम political administrative structure of the country semane believe karanti nahi and what they want they need of parallel government semane gote parallel government सबले चाहते parallel government रो meaning कोन गोटे गवर्नमेंट हम पाखे जेमते सेंटर बा स्टेट रे गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन हेकी अछि सेमती सेमाने आउ गोटे पैरेलल गवर्नमेंट कंटिन्यू करिवे क्रिएट करिवे इन द स्टेट हैना पाखा पाखी मोर देन 200 आउटफिट्स इंसर्जेंट आउटफिट्स दे आर प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नेक्स्ट रहिला हम पाखरे नेक्स्ट कांसेप्ट दैट इज रिलीजियस फंडामेंटलिज्म तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कहले हमें कोन बुझंती तो एई जगह रे सिंपल टर्म फंडामेंटलिज्म को बुझी जानतु सो दैट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कोन बुझिया पय इजी हो फंडामेंटलिज्म रो मीनिंग होची निजर आइडिया को निजर व्यू को आउ कहा ऊपर जबरदस्ती लदी दबा बा निजर आइडिया को आउ कहा पर इंपोज करबा मानि नियंतु मु एग्जांपल मोर देखुची मु वर्तमान पढौची सिक्योरिटी मु कहली कि मु जहां पढौची दैट इज फाइन वो फुल एंड फाइनल या ऊपर कोनसी प्रकार मॉडिफिकेशन ही परिबो नाही एंड मोर टीचिंग स्टाइल को बा मु जति की सिलेबस कवर करछि बा जहां पढे सेटा फाइनल या ऊपर आ किछि नवा जिंस पढा दे परिबो नाही एई जगह रे यू कैन कॉल मी एज अ फंडामेंटल टीचर बुझिला फंडामेंटलिस्ट रो मीनिंग कोन बा मते गोटे फंडामेंटलिस्ट एई जगह रे कुआ जाय परिबो बिकॉज़ मु मोर व्यू को अन्य मानक ऊपर इंपोज करबा को चेष्टा करछि इन द सेम वे जेतबे गोटे रिलीजन पर्टिकुलर रिलीजन बा गोटे सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन जेतबे से माने ट्राई करिवे तांकर रिलीजियस आइडियोलॉजी को तांकर रिलीजियस कॉन्सेप्ट को जहा जहा सेमानकर इंटरनल सिस्टम इंटरनल स्ट्रक्चर अछि ताकू अलगा रिलीजन मानक ऊपर इंपोज करिया पई सेमानु को हमें कहबा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म फिफ्थ इश्यूज दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या ऊपर हम आज कंप्लीट कंप्रेहेंसिवली डिस्कस करबा टॉपिक ये टू स्टार्ट करबा ताकू वर्तमान मु डिस्कस करू नाही या परे डिस्कस करिबा नेक्स्ट इज कम्युनल वायलेंस फ्रॉम द नेम इटसेल्फ बुझी पड़थुए कि कम्युनल वायलेंस कहले कोन प्रॉब्लम हुए डीटा कम्युनिटी भीतर जेतबे वायलेंस होची ताको हमें कम्युनल वायलेंस कहउछन मोब लाइंचिंग रो कोहंतु बा बीफ निज घरे बीफ रखिया पई कोहंतु कोनोसी भी कारण रो जेतबे डीटा कम्युनिटी भीतर क्लास हेची एंड इंडिया हैज ऑलरेडी विटनेस्ड दिस टाइप ऑफ क्लासेस सो कम्युनल सिक्योरिटी जदि हम वर्तमान टाइम पीरियड रे देखिबा कम्युनल वायलेंस ये गोटे इंपोर्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करबा को लागिची इंडिया कोस्टल सिक्योरिटी इंडिया पाखरे अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर कोस्टल लाइन अछि कोस्ट लाइन अछि जहां 9 स्टेट देखि स्प्रेड हिच इट स्प्रेड्स थ्रू 9 स्टेट्स 9 कोस्टल स्टेट्स आर देयर सो दिस इज द रीजन फॉर व्हिच इंडिया इज सो मच वल्नरेबल टू अटैक फ्रॉम द कोस्टल रीजन्स जदि के गाजी अटैक ऊपर सुनिथिबे गाजी अटैक रे पाकिस्तान विशाखापट्टनम ऊपर अटैक करिया को चाहिला सुनछन गाजी अटैक ऊपर सो कोस्टल सिक्योरिटी तो हम पाखरे अछि साइमल्टेनियसली तो हम पाखरे कोस्टल सिक्योरिटी अछि हमें 200 नॉटिकल माइल पर्यंत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एन्जॉय करूछंती मिनरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करि पारुछंती ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू वाटर रूट हमें इजीली करि पारुछंती एंड साइमल्टेनियसली हमको इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट मध्य एई कोस्टल रूट देकी आसुछि नेक्स्ट इज साइबर क्राइम व्हिच इज अ नॉन कन्वेंशनल टाइप but this is the time of digitalization everything is being digitalized I'm a digital platform को use करूछंती we have started using information and communication technology जदि हम ICT को use करूछंती at the same time what we need protection of the cyber space यदि cyber space ର protection न होए in the cyber space itself बहुत प्रकार crime हेई पारे जहा हमें साइबर क्राइम बोली कहउछंती ए साइबर क्राइम किछि सिविल क्राइम भी हेई पारे क्रिमिनल क्राइम भी हेई पारे स्पेशली साइबर क्राइम्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक क्राइम्स ऑनलाइन फ्रॉड ऊपर समस्त सुनथिबे सो साइबर क्राइम्स रो ऑनलाइन फ्रॉड होबार बहुत संभावना था केवल ऑनलाइन फ्रॉड में अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड देयर आर सम अदर सिक्योरिटी इश्यूज व्हिच आर एसोसिएटेड विथ साइबर सिक्योरिटी एज वेल द लास्ट वन इज इकोनॉमिक क्राइम जेतबे हम डिस्कस करबा जब इकोनॉमिक क्राइम पडिबा सेठी हम स्पेशली फोकस देबा मनी लॉन्ड्रिंग को जहां पई हम पाखरे एक्ट अछि जहां को प्रिवेंट करिया पई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
इकोनॉमिक क्राइम हेले प्रॉब्लम कोन इकोनॉमिक क्राइम हेले प्रॉब्लम की गोटे पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हबो इकोनॉमिक क्राइम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल इकोनॉमी एटा कोन पई क्रिएट होय ना ड्यू टू द ब्लैक मनी इन द मार्केट यही कारण पई हम पाखरे गवर्नमेंट जेतेबेले जीडीपी जीएनपी कैलकुलेट करे बा गवर्नमेंट जेतेबेले नेशनल इनकम कैलकुलेट करे हम पई प्रॉब्लम हबो गवर्नमेंट पई एटा को कैलकुलेट करिया पई जेतेबेले हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करिवार प्रॉब्लम हबो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट रो जहा इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन हबो से पॉलिसी रो बेस भूल हे जो तो ऑटोमेटिकली यार सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मध्य कम जाय इज दैट क्लियर सिक्योरिटी थ्रेट जहा जहा अच्छी हम पाखरे वर्तमान से विषय समस्त बुझी पाले ना डाउट अछि मोर और लेस जदि मु कहबी ये कंप्लीटली हमर सिलेबस ही एतिक जिंस अछि सिलेबस ही इंटरनल सिक्योरिटी रो कहूची एतिक जिंस को हम पढिया पय हम खाली गोटे ग्लिम्स नेले कि कोन कोन टॉपिक अछि हम पाखरे डिस्कस करिया पय बा कोन कोन सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया वर्तमान फेस करूची जदि एतिक टॉपिक भितरु कार डाउट अछि ताले पचरंतु अदरवाइज आगो बुझिबा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन पचार तो अच्छा देखो देयर इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन जेतेबेले क्राइम को when a crime is committed by more than when जेतेबेले एटा गोटे लोक द्वारा होची ताला हम ताको क्राइम कहउछन एंड व्हेन इट इज कमिटेड बाय मोर देन वन पर्सन ताको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोली कहउछन तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर को फैक्टर आसुछन बा को क्राइम आसुछन दे आर इलीगल ट्रेड को काउंटरफिटिंग ऑफ द इंडियन करेंसी को स्मगलिंग ड्रग ट्रैफिकिंग प्रोस्टिट्यूशन मनी लॉन्ड्रिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर रे आसी था बुझेला तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर बहुत गुडे जिनस आस्तान जहार डिस्कशन अछि हम तो जदि मु कहबी कोस्टल पायरेसी को बा कोस्टल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को साइबर सिक्योरिटी को इकोनॉमिक क्राइम को एठी गोटे लोक तो करे मैक्सिमम जगह देखबे कि मोर देन वन पर्सन दे आर बीइंग इन्वॉल्वड इन द क्रिमिनल एक्टिविटी तो से सब को हमें कहबा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोली इज दैट क्लियर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ओके so let's move forward. So next we will discuss about the sources of internal security threats. India रे internal security threat हमारा source कौन बा region कौन हमें जो स्पेशली देखिबा. In this regard, I would like to quote Lord Curzon. Lord Curzon कर गोटे quotation एटी मु कहूची that is से गोटे बुक रे तांकर एटा लिखिथिले the central position of India, its magnificent resource, its teeming multitude of men, its great trading harbors, its reserve of military strength, supplying an army always in a high state of efficiency and capable of being hurled at a moment's notice upon any given point either of Asia and Africa. All these are assets of precious values. This is quoted by Lord Curzon. So, a meaning ru, a quotation we can completely understand that this is the resource of India and not only the economic resource but also the human resource of India, which attracted many foreign invasions in the earlier histories. So जदि ए जगह हम source of insecurity को discuss करिबा कि the reasons for which India is insecure or the reason for which we are facing internal security issues, then first and the foremost thing that we need to discuss is related that is the factor of geography. Why? Geography कौन पाई हमको डिस्कस करबा दरकार because location is central to any country's well-being. A particular location or physical setting or latitude को बा altitude को it defines the geography of a particular place बा जदि हमें कहबा security of a particular place. तो geography सहित related है कि अछन दीटा जिंस always one is foreign invasion and the second one is disaster. India रा history को देखो I'm not talking about only post-independence period. I also talk about pre-independence era. इस समय अपन इंडिया हिस्ट्री को जदि देखिबे you can easily understand that India is the capital in the world which attracted many foreign invasions. North portion नु कोंतु through the Himalayan mountains, northwest region नु कोंतु
नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो कहंतु बा इंडिया रो सदर्न पोजीशन बा ईस्ट और वेस्ट पोर्शन which is a coastal zone से पोर्शन नु कहंतु प्रत्येक पोर्शन नु प्रत्येक ज्योग्राफिकल एंगल रु इंडिया को फॉरेन इन्वेजन इन द हिस्ट्री हे आसीछि तो जोटा क्रिएट करछि सो वी कैन बेसिकली कंक्लूड दैट दिस इज द physical setting and this is geography of India which attracted many foreign invasions बुझियला एंड ज्योग्राफी सहित ए रिलेटेड आउ गोटे जिंस बर्तन हम डिस्कस करबा कि दैट इज डिजास्टर we have used geography and the mother earth for our own interest for our self interest and now the mother earth has started taking revenge geography has started taking revenge from the human civilization upor वर्तमान geography तार प्रतिशोध नवा स्टार्ट करि सारछि and which is being manifested in the form of disasters बहुत बड़े डिजास्टर जेमति कि अर्थक्वेक कहंतु सुनामी कहंतु फ्लड कहंतु ड्रॉट कहंतु क्लाइमेट चेंज बा ग्लोबल वार्मिंग ऊपर कहंतु जहार सिग्निफिकेंस बा जहार नेगेटिव इंपैक्ट इन द सोसाइटी एंड अपन द इकोनॉमी रहिछ सो इज दिस फैक्टर क्लियर हाउ ज्योग्राफी क्रिएट्स इनसिक्योरिटी टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट is this factor clear geography related okay so the second factor is history यदि हम हिस्ट्री को जीवा बेसी अधिक ओल्ड हिस्ट्री को जीवार आवश्यकता नहीं जस्ट गो टू 1947 and in 1947 two nation theory came and according to two nation theory India was divided into India and Pakistan तो जब 1947 रे नुआ कंट्री क्रिएट हला पाकिस्तान सेही समय इशू आसला जदि पीओके रिलेटेड इश्यूज ऊपर के डिस्कस करते पीओके रिलेटेड at the respective time I will discuss about POK बेसिक किछि कोनी तो POK रीजन को ऑक्युपाई करके रखला किए ना पाकिस्तान एंड लेटर ऑन थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर वाज मर्ज्ड टू इंडिया कश्मीर इंडिया रे मिसि गला एंड POK रीजन नु पाकिस्तान आर्मी ए पर्यंत मध्य हटिला नाही जहा को माने आजाद कश्मीर बोली एबे भी कहउछंती एंड दिस कांसेप्ट ऑफ आजाद कश्मीर इट क्रिएट्स अ हेवी इंटरनल सिक्योरिटी बर्डन अपॉन इंडिया ए पर्यंत मध्य स्कार्पिंग ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बा 35A विषय को बा या पूर्व होइतिबा सब अटैक गुरदासपुर अटैक हो उरी अटैक हो प्रत्येक अटैक ऊपर को जदि से अटैक मानकर सोर्स हमें देखिबा ओरिजिन देखिबा देन ऑलवेज दैट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नेक्स्ट फैक्टर इज कल्चर as the Indians we are proud of a proverb that is India is the country of diversity and we have unity in diversity but this is the problem or this is the reason for which India is facing internal security issues in today's world in 2020 as well the reason is India is a very pluralistic country and in India we'll be finding diversification in the form of language in the form of ethics in the form of religions and in the form of culture as well so ये जो diversity हमें एते देखु चंती so this is not possible for the government of India to cater needs of all the diversified persons government of India case रे this is not possible so I was discussing about diversity Indians are proud of the fact that there is unity there is integrity amid diversity हम पाखरे cultural diversity on the basis of language ethnic diversity religious diversity रही apart from that still Indians are united जेतबेले 1947 when India emerged as a independent country से समय एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड यूएसए कहंतु यूके कहंतु जो माने डेमोक्रेसी कोन बहुत पूर्व जानि सारथिले जो मानकर फ्रीडम कोन से माने जानिथिले लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कोन जो माने बुझी सारथिले दे हैव स्टार्टेड कमेंटिंग इंडिया दैट India cannot stand as a single country. Even if India Pakistan division hela pare, जति कि वर्तमान इंडिया देखुचंती से इंडियन रीजन को से माने कहितले कि वर्तमान सुधा इंडिया गोटे कंप्लीट गोटे कंट्री हे कि स्टैंड करि परिबो नाही बिकॉज़ रीजन कोन ना डाइवर्सिटी बहुत प्लुरालिटी अछि एटी कल्चरल डाइवर्सिटी अछि आ सहित जदि आपण ज्योग्राफी देखिबे डेवलप्ड रीजन जते डेवलप्ड कंट्री अछंती यूके कहंतु यूएसए कहंतु ये प्रत्येक जगह कल्चरल होमोजेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड होमोजेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पाइबे सेम टाइप रो लैंग्वेज सेम टाइप रो कल्चर सेम टाइप रो रिलीजन से जगह देखा को पाइबे तो एटा मध्ये गोटे रीजन जोथि पय से माने आज का डेट रे डेवलप हेकि रहिचंती यदि अंडर डेवलप
बा डेभलपिंग कंट्री मानकर कल्चर रिलीजन लैंग्वेज को एनालिसिस करेंगे ताले एई जगह कंक्लूजन ने पहुंचबे कि सेठी होमोजेनिटी नाही हेटेरोजेनियस कल्चर लैंग्वेज एक्जिस्ट्स तो जो कम्युनल टेंशन कम्युनल वायलेंस क्रिएट हुए एंड डेफिनेटली जो कम्युनल टेंशन कम्युनल वायलेंस इन द सोसाइटी हम दैट विल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कर्ब दैट डाउन एंड जो गवर्नमेंट एटा चेष्टा करूची डेफिनेटली गवर्नमेंट रो इकोनॉमिक बजेट बा गवर्नमेंट एक्सचेकर रु फंड खर्च हम से फंड को जदि हमें कम्युनल टेंशन को ठीक करने यूज न करी से फंड को यूज करवा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ताले यू कैन इमेजिन कि जदि हमें सब्स्टिट्यूट करि परिबा ताले केते द पेस ऑफ डेवलपमेंट केते अधिक हेई परिबो इज दैट क्लियर अबाउट कल्चर डाइवर्सिटी 4-5 लाइन लिखि परिबे समस्ते खाली इंडिया पाकिस्तान नो पार्टीशन नुहे 1947 नो केवल इंडिया पाकिस्तान नो पार्टीशन नुहे रादर 1971 in which East Pakistan was separated from Pakistan and a new country came into existence that is Bangladesh. ता परठु मध्य बांग्लादेश इंडिया सहित टेंशन लागि रहिछि इंडिया पाकिस्तान सहित प्रॉब्लम लागि रहिछि क्लियर रिगार्डिंग कल्चर कि कल्चर सहित कोन कोन प्रॉब्लम अछि बा कोन कोन हे पारे कल्चर पर आहुर अधिक हम पढिबा धीरे धीरे पढिबा the next factor that we need to discuss is unfriendly neighbor and in this regard I would like to quote two countries one is Pakistan and another is China जो पोखरण टेस्ट हेतिला during पोखरण टेस्ट India has explained the entire world that this Pokhran test was not to make India a superpower. Rather, this test was only due to unfriendly neighbors. The unfriendly neighbor कहले in general आमे पाकिस्तान और चाइना को बुझंती तो ये ना रु ही बुझी पड़ुछे मते बेसिक किछ डिस्कस करबार आवश्यकता नाही कि हाउ पाकिस्तान एंड चाइना से माने केमती से which type of activities बा सेमानकर स्टेट एक्टर कोंतु नॉन स्टेट एक्टर कोंतु सेमाने केमती सिक्योरिटी इश्यूज को क्रिएट करछथि इंडिया रे बा सेमानकर सिग्निफिकेंस कोन रहिछि इंडिया रे सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करिवारे तांग ऊपर सेपरेट टॉपिक भी अछि हम डिस्कस करिया पाकिस्तान ऊपर चाइना ऊपर एंड द नेक्स्ट इज वोलाटाइल नेबर तो एटी वोलाटाइल नेबर जेतले डिस्कस करबा आई वुड लाइक टू कोट अबाउट नेपाल भूटान इवन इफ बांग्लादेश श्रीलंका आउ जत्ते छोटो छोटो कंट्रीज देखुचंती इंडिया रा नेबरिंग कंट्री आउ जत्ते छोटो छोटो कंट्री देखुचंती नेपाल कोंतु भूटान कोंतु बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार कोंतु तो प्रॉब्लम कोन है मानकर ई वोलाटाइल नेबर मानकर कि आज ए मानकर कंप्लीट सपोर्ट इंडिया को गलानी तो काली आउ को वर्ल्ड को पळलानी केबे चाइना को गलानी मान सपोर्ट करलेनी तो केबे पाकिस्तान को मानकर सपोर्ट गलानी तो केबे यूनाइटेड स्टेट्स को तो केबे यूके को माने सपोर्ट गलानी जोथि पई इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट होछि तो केमिति भूटान नेपाल क्रिएट करछन से विषय भी हम डिस्कस करिया एंड द फाइनल फैक्टर व्हिच क्रिएट्स सिक्योरिटी इश्यूज इज टेक्नोलॉजिकल अंडर डेवलपमेंट तो समस्त बुझी पड़थले कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स को कमाइबा पई स्पेशली तो हम टेक्नोलॉजिकल अंडर डेवलपमेंट ऊपर डिस्कस करथि हमको एठी साइबर सिक्योरिटी ऊपर हम इनडायरेक्टली डिस्कस करथि यदि हम पाखर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नाहंती हम प्रत्येक जिंस को वर्तमान गवर्नमेंट डिजिटलाइज कर दोछि प्रत्येक काम को ई लर्निंग रो स्टार्ट करिकि हमर गवर्नमेंट सर्विस जहाँ जहाँ से सब भी डिजिटल फॉर्मेट रे हम देखि परछंती गवर्नमेंट बहुत बड़ा स्कीम फॉर्मुलेशन करूची ई बैंकिंग कोंतु ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज कोंतु ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स कोंतु तो प्रत्येक जगह रे जदि वर्तमान ह्यूमन बीइंग रा एक्जिस्टेंस मु कहबी देन ह्यूमन बीइंग नाउ डेट एक्जिस्ट वर्चुअली रादर देन फिजिकली तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे प्रत्येक लोक को हमें देखियो को पाइबा प्रत्येक घरे 4-5टा मोबाइल फोन इंटरनेट कनेक्शन हमें देखियो को पाइबा खाली कनेक्शन नुहे या सहित आमे अनेक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को अवेल करि पारछंती बैंकिंग फैसिलिटीज को अवेल करि पारछंती लर्निंग को अवेल ई लर्निंग को अवेल करि पारछंती एमते अनेक जिंस आमे ऑनलाइन करि पारछंती बा साइबर स्पेस रे करि पारछंती वर्तमान कथा हला जो जगह आमे एते प्रकार एक्टिविटीज करि पारछंती इज दैट स्पेस व्हिच इज कॉल्ड अ साइबर स्पेस इज दैट साइबर स्पेस कंप्लीटली प्रोटेक्टेड द आंसर इज नो दैट साइबर स्पेस इज नॉट प्रोटेक्टेड ताको प्रोटेक्ट आमे केमिति करि परिबा we need a strong cryptology we need a strong cryptography तो एथि पय हमकु क्रिप्टो एनालिस्ट मानकर आवश्यकता रहिछि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट मानकर आवश्यकता रहिछि जोटा इंडिया पाखरे जति कि नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट रहिबा कथा सेति कि नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट माने नाहंती इज दैट के सोर्सेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कोन कोन सोर्स अछि हम पाखरे बुझि पाले ये गोटे क्वेश्चन 15 मार्क रो हेइ पारे अच्छा ए सहित आउ गोटे जिंस एठी हम ऐड करियो चाहिबे आउ गोटे पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड दैट इज any world event so any world event how it affects india by india internal security system को ये केमिति अफेक्ट करि था
तो हिस्ट्री जदि देखिए इंडिया ताहले बहुत भल भाव बुझी पारे। खिलाफत मूवमेंट ऊपर आई होप समस्ते शुणिथिबे। खिलाफत मूवमेंट टर्की रिलीजियस हेड जे थिले तांको कैलिफ बोली कहा जाउतिला। एंड जेतेबेले टर्की वार रे हारी जाइतिला सेतेबेले तांकर रिलीजियस हेड रो पोस्ट कैलिफ को अबोलिश कर दिया जाइतिला। एंड रिलीजन एटी किए अफेक्टेड हेतिला? द रिलीजन वाज इस्लाम रिलीजन। टर्की रे रहउतबा इस्लाम माने अफेक्टेड खाली हि नथले ई समय रे। एंड इट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द एंटायर इस्लामिक कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ई समय रे इंडिया रे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हेतिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग भीतर कोऑपरेशन मध्य ई समय बहुत भलो देखिया को मिलितिला। एंड ड्यू टू खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊपर बहुत प्रेशर मध्य पड़ितिला से समय। तो एथुर हम ई इंस्टेंस रो कोन बुझिले? खिलाफत मूवमेंट को डिस्कस करबा मोर लक्ष्य नय। मु एठी डिस्कस करबा चाहूँ कि हाउ एनी एक्सटर्नल इवेंट अफेक्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये जिनस को मु डिस्कस करबा चाहूँ एंड दिस इज द रीजन फॉर व्हिच आई हैव टेकन वन इंस्टेंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो खिलाफत मूवमेंट रे टर्की रे हेतिबा किछि गोटे इश्यूज गोटे पर्टिकुलर रिलीजन ऊपर हेतिबा इश्यूज दैट अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड जो इस्लामिक कम्युनिटी रहउतनी सेमान को अफेक्ट करथला एंड इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स एज वेल। तो इन द सेम वे जदि आज का डेट रे हम देखुचंती जो माने पाकिस्तान रे जो हिंदू माने अछंती इन पाकिस्तान जो हिंदूज आर माइनॉरिटी माने माइनॉरिटी अछंती जदि हिंदू माने को ऊपर कोनोसी प्रकार परसिक्यूशन होउची रिलीजियस परसिक्यूशन होउची ताहाले इंडिया रे जो हिंदू माने अछंती ऑल ऑफ सडन एमाने एमाने कोन करिवे से डेफिनेटली से माने सपोर्ट करिया चाहिए कि जो माइनर हिंदू पाकिस्तान ने बा वर्ल्ड रे अलगा को रीजन ने रहउचंती सेमान को सपोर्ट करिया चाहिए इंडियन हिंदू माने। एंड ऑटोमेटिकली सेमाने यार रिवेंज नबा को चाहिए इंडिया रे जो अदर मुस्लिम कम्युनिटी अछंती सेमान को ऊपर जे गोटे सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करियो बा आज का डेट रे जदि हम कहबा दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट इन इंडिया। बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है बिकॉज जो माने सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करबा को चाहउचंती ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थ्रू रे अंडरवर्ल्ड कोंतु बा पाकिस्तान चाइना वाली अनफ्रेंडली नेबर कोंतु सब बेले सेमानकर मोटिव कि वार न करी केमती कम पैसा रे चीप वार हे परियो। एंड चीप वार मींस केमती गोटे गवर्नमेंट को से माने अनस्टेबल करबा को सब बेले चेष्टा करियो केमती पैरेलल गवर्नमेंट चली पाए क्रिएट हे चलियो गवर्नमेंट चलीथिबो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यू हो प्लस आ गोटे पैरेलल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएट हो गवर्नमेंट को अनस्टेबल करबे डिस्टेबिलाइज करबा को चेष्टा करिवे सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट करबा को चेष्टा करिवे। तो ए सब हेले प्रॉब्लम कोन हो ना सिंपल जिंस गोटे कंट्री रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो रेट बा पेस कमी जो। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो स्पीड जते बेले कमी जो ऑटोमेटिकली किछ दिन परे से कंट्री डेवलप्ड बोली हम से कंट्री को कहि परिबा नाही जोटा अदर कंट्री माने चाहन कि गोटे पर्टिकुलर कंट्री डेवलप न हो। वार हबार रीजन केबे भी न था कि गोटे कंट्री केबे भी चाहेनी कि तार काउंटर पार्ट रो किछि सोल्जर मानु को मारि देबा पई बा किलिंग करिया पई बा मर्डर करिया पई रादर से माने सबल चाहନ୍ତି कि तार इकोनॉमी को केमते डिस्टेबिलाइज करिवे इकोनॉमिक स्लो डाउन केमते से कंट्रोल हे परिबो एटा को से माने सबले फोकस करन बुझिला। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेस ऑफ इनसिक्योरिटी इंडिया रे इनसिक्योरिटी पई जहा सोर्स हम डिस्कस करले। नेक्स्ट टॉपिक मु स्टार्ट करबी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ एटी गोटे वर्ड देखि परके समझते कि लेफ्ट अछि। तो लेफ्ट रो मीनिंग कोन? लेफ्ट रो मीनिंग एटी बुझिबा पड़िबो जेतेबेले लोकसभा रे देखिबे बा राज्यसभा रे लोकसभा रे देखिबे कि स्पीकर अछंती एम्ति एंड सीट अलाइनमेंट सबले देखिबे एम्ति हेतो सेमी सर्कुलर ठीक अछि सेमी सर्कुलर हेता स्पीकर कर राइट साइड देखिबे सेठी सबले गवर्नमेंट रो एमपी माने बसथिबे बा गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करथबो स्पीकर कर राइट रे। तो लेफ्ट रे स्पीकर कर लेफ्ट रे सब बेले अपोजिशन बसे। तो अपोजिशन नो काम कोन? अपोजिशन नो काम होची टू अपोज द गवर्नमेंट। सो जो जगह लेफ्ट वर्ड यूज हेची से जगह हम जानिले कि जो माने गवर्नमेंट को अपोज करूछंती सेही विंग को हम लेफ्ट विंग बोली कहउछन फर्स्ट कथा। सेकंड टर्म एटी अछि हम पाखरे एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म रा माने कोन? जो माने वायलेंस को एज अ मीन अडॉप्ट करूछंती कोन पई अडॉप्ट करूछंती वायलेंस को एज अ मीन टू एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ताको हमें कहउछंती एक्सट्रीमिज्म। तो कंप्लीटली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहले जो माने गवर्नमेंट को सप्रेस करबा को चेष्टा करछंती जो माने गवर्नमेंट अगेंस्ट रे जीवा को चेष्टा करछंती एंड दैट टू इन अ वायलेंट मैनर सेमानु का हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोली कहउछंती। नेक्स्ट हम देखिबा हिस्ट्री कोन हिस्ट्री केमती कोन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया रे स्टार्ट हेतला। तो जदि यार हिस्ट्री मु देखिबी इट हैज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। एक्चुअली इट स्टार्टेड एज अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। हैव और हैव नॉट्स कोन? हैव मींस जो माने रिच पर्सन थिले से माने एवं हैव नॉट माने जो मानक पाखरे किछि नथिला पोर थिला
सो रिच वर्सेस पोर स्ट्रगल गोटे स्टार्ट हेतला कोठी स्टार्ट हेतला नक्सलबाड़ी विलेज रे स्टार्ट हेतला एंड अंडर लीडरशिप ऑफ चारू मजुमदार एंड कानू सन्याल तो नक्सलबाड़ी विलेज रु स्टार्ट हेतबारु एमानकु नक्सल बोली मध्य कुहा जाय थाए एवं कम्युनिस्ट लीडर चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर ना सुनिथिबे माओ से तुंग एमाने माओ से तुंगर आइडियोलॉजी को मानुथिबा कारणरु एमानकु माओइस्ट बोली मध्य कुहा जाय तो एमानकु नक्सल बोली कुहा जाय माओइस्ट बोली कुहा जाय एवं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोली मध्य कुहा जाय थाए तो आरंभ हबार कारण कोन थिला 1967 रे ये स्टार्ट हेतिला नक्सलबाड़ी विलेज रे तो मुख्य प्रोब्लेम ए समय थिला कि ट्राइबल बा जो माने पोर थिले सेमानंकु लैंडलॉर्ड माने बहुत अधिक एक्सप्लॉइट करथिले स्पेशली इन द ट्राइबल जोन बा माइनिंग बेल्ट जोड़ा फॉरेस्टेड एरिया थिला रिमोट एरिया थिला इंडिया रो जो माने डेवलप हे नथिले दोज हु आर इग्नोरेंट अबाउट द लॉ दोज हु आर इग्नोरेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो माने को रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ई नॉलेज जो माने कर नथिला सेमानंकु लैंडलॉर्ड माने एक्सप्लॉइट करबा को चेष्टा करथिले इकोनॉमिकली तो ए कंडीशन पई धीरे धीरे सेमानक मधरे अवेयरनेस क्रिएट हैला एंड दे स्टार्टेड एंड द स्ट्रगल स्टार्टेड गोटे बुक अछि हेलो बस्तर दिस बुक हैज बीन रिटन बाय जर्नलिस्ट राहुल पंडिता पढ़ी चंदी बही को की दिस इज ए गुड बुक आई विल रिकमेंड टू गो थ्रू दैट बुक सिंपल बहीटे चटी बहीटे ताको पढ़ंतु नक्सल मानक ऊपर बहुत बड़ जिंस एटू शिक्षा को मिलिबो दिस इज नॉट रिलेटेड टू डेफिनेटली योर सिलेबस बट डेफिनेटली इट विल ऐड वैल्यूज टू योर प्रिपरेशन बहुत बड़ नॉलेज पाइबे बही पढ़ले दैट टू इन अ स्टोरी फॉर्मेट पे लिखा जाय छै सब भल लागियो पढ़ले पढ़ंतु सब so the story is revolving around the issues related with Bastar which is called Maoist capital in India ठीक अछि एनीवे सो जदि हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मानकर एम देखिबा समानकर एम होची पावर रन्स फ्रॉम द समानकर आइडियोलॉजी होची जोटा माओ से तुंगर आइडियोलॉजी थिला एंड दैट इज पावर रन्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन एटा होची समानकर आइडियोलॉजी वर्तमान तंगर हिस्ट्री देखिबा हाउ दे वर क्रिएटेड समान केमती क्रिएट हेतले नक्सल प्रॉब्लम इंडिया रे 1967 ने स्टार्ट ला मु जेमते कहली इन नक्सलबाड़ी विलेज वेस्ट बंगाल बट 2004 पर्यंत अप टू 2004 एटा एते इंटेंसिफाइड स्ट्रगल नथिला इन 2004 दीटा ग्रुप कर मर्जर हेतिला से दीटा ग्रुप कर ना होची पीपल्स वार ग्रुप ए पीपल्स वार ग्रुप आंध्र प्रदेश तेलंगाना साउथ छत्तीसगढ़ रे प्रेजेंट थिला एंड सेकंड ग्रुप जो थिला माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी यार प्रेजेंस जदि देखिबा ताहले बिहार झारखंड एवं वेस्ट बंगाल रो किछि पार्ट रे पार्शियली वेस्ट बंगाल रो किछि पार्ट रे एमसीसी रो प्रेजेंस थिला 2004 रे गोटे स्ट्रेटेजिक अलायंस हला बिटवीन पीडब्ल्यूजी एंड एमसीसी एंड दे मर्ज टू फॉर्म सीपीआईएम माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बर्तमान आज का डेट रे जदि देखिबा इन टुडेस टाइम पीरियड देन द सीपीआईएम इज रेस्पोंसिबल फॉर मोर देन 95% ऑफ किलिंग and 90% of Naxal incidents. I can give you one better example in this lockdown period as well, when the entire police force, security forces, they are engaged in maintaining the law and order situation in the entire country. This situation was exploited, this situation was misused by the leftists and especially by the Communist Party of India Maoists to create some Naxalite movements in many parts of Chhattisgarh and Jharkhand. Recent news जदि के पढ़िथिबे they might be more aware about this fact and subsequently जेतले 2004 रे CPIM formation हला it provided a national level of thrust to all the Maoist activities or to all the Naxalite activities. First Andhra Pradesh CPIM को बैन कला आंध्र प्रदेश पर छत्तीसगढ़ बैन कला एंड मुंबई अटैक पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंप्लीटली बैन कला सीपीआईएम खाली गोटे ऑर्गेनाइजेशन नुहे बरं या पाखरे बहुत सब ऑर्गेनाइजेशन अछंती जेमति कि आर गोटे आर्मी विंग अछि सीपीआईएम रो जहा को कुआ जाय पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी पीएलजीए पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी
एमानक पाखरे गोटे पब्लिकेशन टीम भी अछि एमाने गोटे मैगजीन भी पब्लिश करंती जो मैगजीन ना होची जंग मैगजीन हला एमानकर एम जदि देखिबा बा ऑब्जेक्टिव देखिबा एमानकर एम होची पेंट इंडिया बाय रेड कलर बा रेड फ्लैग फ्रॉम द रेड फोर्ट बाय 2050 मध्यने रेड फ्लैग से रेड फोर्ट रु उड़ेबा को चाहउछंती the objective not about the first objective I'm talking about the second objective which is red flag from the red fort by 2050 if they are interested to host their flag not their flag but that should be replaced by the national flag of India if they are interested to host this flag in 2050 from the red fort by a democratic means then their aim and objective is quite welcome because democratic India is a democratic country जदि डेमोक्रेटिक कंट्री थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से इलेक्शन जितिला परे सरकार बनाउछन्ते ताहले कोनोसी प्रॉब्लम नाही बट सेमानकर फर्स्ट क्लॉज ऑब्जेक्टिव रो फर्स्ट क्लॉज को जदि हम देखिबा व्हिच इज पेंट इंडिया बाय रेड कलर सो दिस इज द डेंजरस पॉइंट और दिस इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया बुझी पारछन सो ए माने गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिवा को चाहउछन्ते डेफिनेटली 2050 सुधा बट इन अ वायलेंट मैनर समस्त बुझिले एमानकर हिस्ट्री ऊपर history of left wing extremists now the question arises why this is a threat why left wing extremism is a threat in 1967 this was a threat this is problem of a particular village that is Naxalbari village but in 2020 this is problem of the entire country approximately 106 districts of India they are being affected they are mostly affected and these 106 districts they belong to or they spreads to through the 10 states of India so approximately 1/3 of India is being affected by Naxal movements or by Maoist if I'll be talking about the most important states the important states which are the victims of this left wing extremism they are Chhattisgarh you can write down these names they are Chhattisgarh झारखंड ओडिशा महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश तेलंगाना मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एंड दिस रीजन यदि रीजन स्प्रेड आमे देखिबा देन इट स्प्रेड्स फ्रॉम नेपाल टू आंध्र प्रदेश नेपाल रा पशुपति मंदिर कॉमनली याको कहा जाए कि इट स्प्रेड्स फ्रॉम पशुपति इन नेपाल टू तिरुपति इन आंध्र प्रदेश और ए रीजन को कहा जाए रेड कॉरिडोर दिस इज कॉल्ड रेड कॉरिडोर पशुपति फ्रॉम नेपाल टू तिरुपति इन आंध्र प्रदेश यदि करंट सिनेरियो रे आज का डेट रे जदि हमें if I'll put focus on the economic and emotional losses that has been caused due to these Naxalite movements, then I'll be finding that more than 90% of these acts or these activities are done by left wing extremists. 2010 ru 2015 भितरे गवर्नमेंट डाटा कहूची 2162 सिविलियन मानकर डेथ हेची 802 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल मानकर डेथ हेची एंड ए जो सिविलियन मानकर डेथ हेची दे वर ट्राइबल यूथ्स जो मानको पुलिस इन्फॉर्मर बोली माओइस्ट माने संदेह करिया परे से मानकर किलिंग करथिले एंड रिसेंट सिनेरियो रे जदी अगेन आउ अधिक इशू आसैत जोटा एसोसिएट हेकी अछि हमें देखिबा ताले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मानकर एसोसिएशन वर्तमान अंडरवर्ल्ड सहित मिलुची अंडरवर्ल्ड माफिया सहित मिलुची जोटा आउ गोटे बड़ इशू वर्तमान क्रिएट करछि एमाने आर्म्स एंड एम्युनिशन फंड सप्लाई एमानको फॉरेन कंट्री फॉरेन स्टेट मानकर होची दैट दोज फैक्टर्स मे बी द स्टेट फैक्टर और नॉन स्टेट फैक्टर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट अलगा स्टेट रो गवर्नमेंट हेल्प करू बा गवर्नमेंट अंडर रे अलगा किछि ऑर्गेनाइजेशन एमानको हेल्प करंतु प्रॉब्लम जदि हमें देखिबा ताले माओइस्ट माने सिंपली दे आर peasants in the khaki
डे टाइम रे पाइबे से फार्मिंग करूछंती, दे आर इन जनरली दे आर फार्मर्स, बट नाइट टाइम रे पाइबे से ड्रेस पिंदी माओइस्ट मानकर यूनिफॉर्म पिंदी से एक्टिविटी स्टार्ट कर दउछंती। आज का डेट रे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डाटा अनुसार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मानक पाखरे 10,000 आर्म कैडर रही, एंड दैट टू आर्म कैडर माने एमानक पाखरे मॉडर्न आर्म्स एंड एम्युनिशंस अछि। 30,000 to 40,000 आर्म्ड फोर्स एमानक पाखरे अछि विथ कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल वेपन्स। जो जो लोक माने एमानक सहित एसोसिएटेड होइकी रुहंती सेमानकर रोल और कैपेसिटी डिफरेंट लोक मानक पई कैपेसिटी डिफरेंट रहता है। जदि स्पेशली आम एमानक ऊपर डिस्कस करबा ताहले इट डिपेंड्स अपॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। को माने माओइस्ट सेंटर को जॉइन करबा को जाउछंती समानकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अनुसार एमानक पोस्ट मिलता है फर्स्ट, एंड सेकंड जदि लास्ट डिकेड माने एमानकर हिस्ट्री देखिबा लास्ट डिकेड मानकर दैट वाज कास्ट। अपर कास्ट मानको अपर पोस्ट, लोअर कास्ट मानको लोअर पोस्ट ए जगह रे मिलुथिला। तो कास्टिज्म कोहंतु, unequal representation कहतु, abusing the status of women कहतु, by exploiting women कहतु, ये सब जिनस completely these things are prevalent in these left wing extremist organizations. Still they have a great dream that by 2050 they will definitely host their red flag from the red fort. Clear a पर्यंत? Next we will be talking about reasons behind spread of left wing extremism. Left wing extremism spread हवा पथरे रीजन कौन कौन रही? जेतबेले 1947 रे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलिला, 1947 रे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलिला परे गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हितला, एंड ए लैंड रिफॉर्म लॉज जहा जहा थिला गवर्नमेंट पाखरे यार इंप्लीमेंटेशन ठीक भाव रे हेई पारि नथिला, बा लैंड एक्विजिशन पॉलिसी जहा जहा थिला गवर्नमेंट पाखरे एटा कंप्लीटली ठीक भाव रे इंप्लीमेंट हेई पारि नथिला, एंड दैट वाज नॉट जस्टिसेबल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। जो माने वर्कर श्रेणी लोक माने थिले, बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो स्टार्टिंग हेतिला बिटवीन द क्लास स्ट्रगल बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। जदि एटा रिच और पोर भितर डिवाइड पई स्टार्ट हेतिला, एंड अगेन लैंड रिफॉर्म लॉ जोटा हैव नॉट्स मानको पोर मानको अगेंस्ट रे जाउची, एमानको सपोर्ट करू नाही, तो डेफिनेटली गोटा रिसेंटनेस बा डिससैटिस्फाइडनेस डिसकंटेंटेडनेस एमानको मन रे क्रिएट हबो, जोटा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को अधिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कला स्प्रेड करिया पई। सेकेंड यदि हमें आज पर्यंत देखा 1947 नु 2020 70 मोर देन 73 इयर्स ए पर्यंत गवर्नमेंट जहाँ जहाँ डेवलपमेंटल मॉडल एक्सेप्ट करिछि, गवर्नमेंट जहाँ जहाँ डेवलपमेंटल मॉडल फॉलो करुछि, इवन इफ आफ्टर द 7 decades from the independence this model has completely failed to ensure a balanced development to all the stakeholders of the society. In many parts of the country, you will be finding inclusive growth is not there. The government is talking only about inclusive growth. The government is talking only about development. It is talking only about eradication of poverty in pen and paper. If in many parts of India, you will be finding that a woman on daily basis, a woman need to walk for 10 kilometers to get drinking water. And at that same point of time, if a Mercedes will be passing by that woman, how ironical is this, and how emotional setback the woman will feel. And the most ironical fact in this regard is that the government is talking about development for all, sabka saath and sabka vikas. In many parts of eastern Odisha, in many parts of eastern India, including the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, including the regions of Bastar, you will be finding underdeveloped regions. You will be finding many places जो जगह ए पर्यंत डेवलपमेंट ही पारि नाही, बा जो जगह ए पर्यंत डेवलपमेंट कोन से माने जानियांती। इवन आफ्टर 70 years of the independence, more than 70 years of independence, in the recent past, government of Odisha
कंस्ट्रक्ट करथिला गुरुप्रिया सेतु ना सुनिथिबे समस्त 70 वर्ष परे गवर्नमेंट रो मने पड़िला कि गोटे ब्रिज क्रिएट हवा दरकार and those alienated isolated section of the society they should be able to communicate with the mainstream. Government nowadays it is providing rice of worth 2 rupees per kg 2 rupees. जदि लोक चलिकी आसी ही पारु नहीं जो जगह चाउल मिलुची से जगह को ताले रिलेवेंस कौन अच्छी आवश्यकता कौन अच्छी 2 टंकार चाउल दवा यदि कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं because infrastructure is the mean to education this is the mean to the development of the economy यदि मार्केट को एक्सेस नहीं यदि हॉस्पिटल को एक्सेस नहीं यदि स्कूल को एक्सेस नहीं एंड आफ्टर ये सब सत्वे मध्य गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट so definitely it will create dissatisfiedness in the mind of the people and that too dissatisfiedness create hela pore there are groups there are people those who are supporting LWE or the members of the LWE they are reaching out to those people and they are doing a brainwash सेमान को बुझाउछन कि गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर यू जदि गवर्नमेंट करूची ताले 70 वर्ष पर ए सब डेवलपमेंट काहे कि तम पाकर पहुंचनी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इशू जोटा LWE सहित वर्तमान आज का डेटा लागि कहै दैट इज जल जमीन एंड जंगल these three are natural resources and those section of the society those who are residing in underdeveloped regions mining belts forest belts of India they assume that water forest and land this is the natural gift which has been given to them by the mother earth or by the god itself and any interference of the developed section of the society in these regions it creates a clash between these two sections यदि ये तीनटा फैक्टर को कौन सी प्रकार इश्यूज रहुची लागी then definitely सेमानक मनरे डिससैटिस्फाइडनेस आहुरी अधिक बढ़ी चली क्वेश्चन पचार we only focus on smart city project don't focus on smart village exactly I agree with the concept smart cities without smart village is meaningless we are talking the government is talking about smart city and up to को रीजन पर्यंत केते डिस्टेंस पर्यंत भुवनेश्वर को स्मार्ट सिटी करिछि and from the heart of Bhubaneswar if you will be going only 10 kilometers 10 kilometers जानतो आ अधिक जीवा दरकार नहीं from the secretariat itself जानतो बा चीफ मिनिस्टर ऑफिस रु नवीन निवास रु 10 किलोमीटर जानतो आउटस्कर्ट को जीवा को चेष्टा करंतु सेपट को पुरी आड़ को बा एपट को चंदका रीजन नंदनकानन रीजन बासिया को चेष्टा करंतु प्रत्येक दिन न्यूज़ पेपर रे देखिबे कि किछि ना किछि क्रिमिनल एक्टिविटी ए जगह रे हेछि एंड पुलिस को तो पीसीआर को फोन जाइछि पुलिस वाज नॉट एबल टू कम ओवर टू द स्पॉट इटसेल्फ नवासी पारिला परे पुलिस एक्सप्लेनेशन कोन ना पीसीआर पाखरे पेट्रोल नथिला एंड दैट टू द पुलिस डिपार्टमेंट इज वर्किंग इन अ स्मार्ट सिटी सो एई सब जिंस जहां में डिस्कस करूचंती द कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरीज we can call it as a failure of the constitution itself and fail of the law fail of the rule of law failure of the procedure established by the law which has given nutrients for the growth of left-wing extremists या सहित we cannot deny the factor of corruption को मध्य आमे deny करि परिबा नाही which is the most important thing that I need to talk in this regard यदि डेवलप्ड हेनी को रीजन if that is underdeveloped region तो डेवलप न हबार रीजन कॉज जदि बाहर करिवे ताले मैक्सिमम जगह रे पाइबे कि करप्शन स्कीम तो अच्छी गवर्नमेंट पाखरे पॉलिसीज तो अच्छी गवर्नमेंट पाखरे फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंदिरा आवास कोंतु प्रधानमंत्री आवास योजना कोंतु बा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कोंतु स्कीम अच्छी पॉलिसीज अच्छी प्रत्येक वर्ष बजेट रे फंड भी एलोकेट करा जाउछि स्टिल आज पर्यंत इंडिया रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेई पारिला नाही अनेक गुडे विलेज अछंती रिमोट पार्ट रे रिमोट एरिया रे अछंती जो माने मेन स्ट्रीम रा कथा तो छाडंतु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सहित कनेक्ट हेई पारिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी छाडंतु निजर रेस्पेक्टिव ब्लॉक बा तहसील सहित से माने कनेक्ट हेई पारिले नाही तो सेमान को मन रे को टाइप रो फीलिंग्स क्रिएट हो गवर्नमेंट प्रति दिस इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फैक्टर which has given birth to LWE is illiteracy.
I don't need to explain much about illiteracy. You can understand, you can interlink this concept with the growth of LWE very easily. Illiteracy होबा कारणरू easily सेमानकर ब्रेन वाश करा जाई पारुछि. First, second, सेमानकर रिसोर्स को इजिली एक्सप्लोइट करा जाई पारुछि. इलिटरेट होबा कारणरू सेमानकु कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर सेमानकर नॉलेज नाही. They possess less knowledge about the Constitution of India, about rule of law, by about procedure established by law. या ऊपर सेमानकर नॉलेज बहुत कम. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर सेमाने जानि पारु नाहंती. एंड धीरे धीरे इजिली सेमाने ट्रेडिशनल वे रे कन्वेंशनल वे रे एलडब्ल्यूई रो रिप्रेजेंटेटिव मानक द्वारा ब्रेन वॉश होकी एलडब्ल्यूई को सपोर्ट करबा को लागि छथि. The next point is no political ventilation. Political ventilation कहले कोन बुझंती? In a democratic country, when there is any problem happening with the citizens, we have different mechanisms to ventilate our anger. যদি আজি কিছু প্রবলেম হଉଛି কমপ্লিটলি ଆମେ PMG को जीवा स्टार्ट कर दउछंती, हड़ताल करबा स्टार्ट कर दउछंती, गवर्नमेंट अगेंस्ट स्ट्राइक करबा स्टार्ट कर दउ. बट ए जो आइसोलेटेड है कि जो लोक माने अछंती इन द फॉरेस्ट रीजन, सेमानक पाखरे कोनोसी पॉलिटिकल वेंटिलेशन रो सुविधा नाही. बा हम पाखरे जहा जहा कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार हमको जहा जहा फ्रीडम ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट्स मिलिछि, फ्रीडम मिलिछि, बंद करिया पई जो अधिकार मिलिछि, ए सब ऊपर ए माने अवेयर होहंती. जोटा गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करूची सेमानकर आंगर को आहुरी अधिक बढ़िया पई एवं अनकन्वेंशनल ट्रेडिशनल वे रे एलडब्ल्यूई ऑर्गेनाइजेशन मानक को सपोर्ट करिया पई. क्लियर? Poverty, I have discussed about poverty, how poverty is related to security issues and security threats. Is that clear? Region समस्त बुझले ना? region में कहाँ को doubt अच्छे से कौन? The reasons for the growth of LWE, it can be a question of 15 marks. इटा 15 mark का question ही पाए. आप लिखिए. आगे बुझिबे ना कि किसी doubt पचारे. Okay. बुझी आसुची सिक्योरिटी इश्यूज भल लागुची पढ़िया को इंटरेस्टिंग लागुची. ओके. सो नेक्स्ट हम द प्रॉब्लम देखिले, हिस्ट्री देखिले, कोन पई एलडब्ल्यू ग्रोथ हिचंदी से विषय पे डिस्कस कले. नाउ दिस इज द टाइम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. कोन कोन सॉल्यूशन बा कोन कोन स्टेप हमें नवा दरकार वर्तमान बुझ. I have broadly classified the solution into different parts. The first is the security intervention. Security intervention कहले हमें कौन बुझंती? नॉर्मली जो सिक्योरिटी फोर्स हम पाकर अछि, we need to strengthen those security force. Now how to strengthen that security force? Strengthen हमें केमती करि परिबा कि हमको सिक्योरिटी फोर्स को मॉडर्नाइज करिबा को पड़िबा. केमती मॉडर्नाइज करिबा? We can provide them bulletproof jacket. We can provide them modern technologies, modern arms and ammunition. We can give them functional autonomy, good incentives, moral and motivation factor, creating the feelings of patriotism, giving them moral support, motivational support, providing them night vision cameras, night vision devices, providing better service conditions, right? So एई सब जिंस दबा द्वारा हमें सिक्योरिटी फोर्स को मॉडर्नाइज करि पारिबा. पुलिस फोर्स कोंतु बा सिक्योरिटी फोर्स कोंतु. And the thing is that we need a very strong police action against the violent component of the society. जो LW माने violent असन सेमानक अगेंस्ट रे हमें strict action गवर्नमेंट नहीं पारिबा. So recently I need to add some current affairs in this regard. A wing of CRPF, Central Reserve Police Force, रो गोटे अछि जहा को कोनती कोब्रा, कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन. कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन. एथिरे 10 बैटालियन अछंती. सीआरपीएफ रो 10टा बैटालियन अछंती. दोज हु आर स्पेशलाइज्ड इन द स्किल ऑफ गॉरिला वारफेयर एंड जंगल वार. फॉरेस्ट रीजन में वार करिया पई बा एमान को सहित वार करिया पई एमान को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाय छै. एमान को हमें डिप्लॉय करि परिबा इन द डेंस फॉरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द नक्सल्स. फर्स्ट पॉइंट. Second, current issues by current development जहाँ comment नहीं ची, that is CIAT,
counter insurgency and anti-terrorist schools. This is a specialized training center for security forces. कौन पाई ना काउंटर इंसर्जेंसी एवं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन शिखिया पाई एउटी गोटे ट्रेनिंग सेंटर. तो एही जगह रे सिक्योरिटी इंटरवेंशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन करि परिबो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ द स्टेट गवर्नमेंट विथ द लोकल गवर्नमेंट. कौन पाई स्टेट गवर्नमेंट बा लोकल गवर्नमेंट पाई कौन पाई कोऑपरेट करिया दरकार. द रीजन इज स्टेट गवर्नमेंट बा स्टेट पुलिस को बा लोकल रीजनल लोक जो माने पुलिस चाकरी करथियो सेमानु को जदि हम डिप्लॉय करथंती अगेंस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशंस it will be easy for them. The reason is they are more aware about the culture of that region, they are more aware about the geography of that region. जदि हमें कोनोसी सिक्योरिटी फोर्स जने पंजाबी लोक अछि एंड ताको हमें ओडिसा रे डिप्लॉयमेंट हेछि ओडिसा रे काम करियो को जाउछि एंड गोटे सिक्योरिटी फोर्स रे गोटे लोक अछि जे ओडिया लोकटे जे बुझी पारछ से रीजन रो जियोग्राफी और कल्चर को भलो भाबरे डेफिनेटली it will be easy for the security force who belongs to Odisha to work in those Naxal regions. Naxalite region ने काम करिया पई इटा इजी हो. या सहित से रीजन में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट मध्य सेंट्रल गवर्नमेंट मध्य स्टेट गवर्नमेंट सहित मिसिकी परिवार आवश्यकता रही. सेकंड इज डेवलपमेंटल इंटरवेंशन. जो कथा में पॉवर्टी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हेची तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखा जाउछ से रीजन में जहा इश्यूज हमें डिस्कस करले तार सॉल्यूशन होची कि डेवलपमेंटल इंटरवेंशन. बिकॉज़ माने एबे भी भाबुचंती कि 7 डिकेड हबा सत्वे आफ्टर 7 डिकेड्स ऑफ द इंडिपेंडेंस they are not included in the mainstream. सेमानकर डेवलपमेंट ए पर्यंत हे नाही. तो सेति पई गवर्नमेंट शुड टेक ऑल द अफर्मेटिव ऑल द पॉजिटिव स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंटल to address the developmental issues in those Naxal affected regions. Third and the most important issue that is to ensure rights of the local community. The local community अछंती सेमानकर राइट्स को एंश्योर करबा दरकार. which type of rights? You might talk about their human rights or you might talk about their constitutional rights or about their legal rights. Because these persons are illiterate, this is the reason for which they possess a little or a few knowledge of rights. Human rights, constitutional rights, or legal rights. So that should be function of the government to ensure rights of these local communities, and government should join hand with civil societies, with NGOs and with other stakeholders to promote rights of those citizens residing in these regions. Fourth factor is the government should aware to provide good governance. Government good governance provide kariya darkar. Then how hame gote issue discuss karitile ki that is corruption, and the issue of corruption can be diminished by providing good governance. So good governance government kemti provide kari paribo? Through a efficient government, through a effective government, through a accountable government, বা through a transparent, responsive and people friendly government. यदि ए स्टेप को जहां हमें डिस्कस करले गवर्नमेंट इज अडॉप्टिंग इन इट्स पॉलिसीज बा गवर्नमेंट जो हिसाब रे एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करूची ई रीजन रो लोक मानन को यदि रेस्पॉन्सिव होची इफेक्टिव होची ट्रांसपेरेंट होची पीपल फ्रेंडली होची एंड इनपुट आउटपुट रेशियो भलो अछि लोक मानकर प्रॉब्लम को गवर्नमेंट इजीली रिड्रेस करूची एड्रेस करूची ताहले डेफिनेटली से रीजन ने गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करा जाई पारिबो एवं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रो इंटेंसिटी को कमा जाई पारिबो. The final factor is solution for the public perception management. Actually this term is very important. Perception is the most important part in a human life. So your relationship with me will be decided by your perception. How केमिति तुम माने मते देखुचो that will be decided by तुमनकर perception कोन मो प्रति. So that will decide our relationship, and in the same way सिटीजन मानकर बा ई रीजन एथवा डिस्ट्रिक्ट लोक मानकर परसेप्शन कोन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एटा को गवर्नमेंट को बुझवा दरकार एवं गवर्नमेंट को या ऊपर काम करी ई रीजन डेवलपमेंट करबा दरकार. क्लियर? सो as a conclusion to the steps that the government should take to diminish the issues of left wing extremism, in my view, India being a democratic country, in this case the government should adopt the government should explore all the affirmative possibilities
and those possibilities, they should be completely democratic in nature to address the problem of left wing extremism. by Indian government explore କରିବା ଦରକାର ବହୁତ ଗୁଡେ opportunities କୁ by providing peace talk with the Maoist leaders. Now the question is, can you deploy Indian army in LWE affected districts or states? Question, financial assistance to surrender and their family. Is it the right approach? See, all the solutions which have already been taken by the government, all the solutions have positive impact as well as a negative impact. If we take it in a positive manner, when the government will provide them assistance, financial assistance, the government will recruit them in the government post, then definitely they will an affirmative perception will be created in their mind towards the government, and then it will be easy for the government to manage LW regions and the extremists as well. But the question is, if the scheme will be abused, if the scheme will be misutilized by extremists just to generate income, because when they will surrender, they will be getting some financial assistance. Surrender କରୁଛନ୍ତି financial assistance ମିଳୁଛି, ତ ଆକୁ ଯଦି ସେମାନେ negatively use କରିବେ, that is a separate matter. But we can see this step of the government as a positive approach towards diminishing LW. Developmental intervention out there, ठीक अछि. Developmental intervention कहूची simple जिनस जते हमें poverty ऊपर जहाँ जहाँ discuss कले कि due to related to poverty ସେମାନେ ଯଦି LW रे ମିଶୁଛନ୍ତି ବା କିଛି problem create होची, ताले से region development करो. केमती development करिवो ना से region नो infrastructure टिके develop करो. Infrastructure भितर road develop करो, health care facilities दियो, जदि देह खराब होची बेसी दूर को आसिया को न पड़ू, तांको घर पाखरे किछि medical facilities available रहू, सेमानको educational facilities दियो, सेमाने पाठ पढ़ी पारंतु घर पाखरे. Education provide हवा द्वारा education will transform human being to human resource. So सेमानकर development हेई पाइबो. Policies schemes जहाँ government रो अछि without any corruption ताको implement करो से region ने, government affirmative step नौ, government से region ने implement करू, so that सेमाने mainstream रे धीरे धीरे मिसी जाए. बुझियला ना डाउट. ओके, मोर क्वेश्चन थिला कि LW region ने हमें आर्मी को डिप्लॉय करि परिबा कि नाही, यस और नो, जल्दी टाइप कर. देखो नॉर्मली हमनकर गोटे परसेप्शन अछि कि आर्मी को हमें वार टाइम रे डिप्लॉय करू एंड दैट टू अगेंस्ट आवर एनिमी. ठीक अछि, तो यदि हमें आर्मी को हमर एनिमी अगेंस्ट रे डिप्लॉय करू छथि एंड दैट टू को जगह आर्मी को डिप्लॉय करा जाय ना इन द बॉर्डर, इन द फ्रंटियर, गोटे कंट्री रो बॉर्डर बा फ्रंटियर रे आर्मी डिप्लॉय होय. वर्तमान इनसाइड द स्टेट कंट्री रो इनसाइड रे भीतर कंट्री भीतर आर्मी को डिप्लॉय करथि, डेफिनेटली ये गोटे नेगेटिव मेसेज दबो सेमानकु कि सेमाने जो माने देखंतु LW मानकर डेवलपमेंट केमती होची बा सेमानकर जो आइडियोलॉजी अछि तार एक्सपेंशन केमती होची, जो माने एक्चुअली मेंबर सेमान तो जानि नांत ना एसो विषय किछि, तो एमानकु इंटेलेक्चुअल सपोर्ट रहिछि, जो मानकर नॉलेज अछि पॉलिटिकल साइंस रे, दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजीज ऑफ कार्ल मार्क्स बा कम्युनिस्ट चिंताधारा जो माने इन्फ्लुएंस्ड, सेमाने LWE मानकु इंटेलेक्चुअल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करछन्ति, जेमति स्टूडेंट्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स ए माने सब. तो एमाने सांग सांग जति इंडियन गवर्नमेंट आर्मी डिप्लॉय करिवो ताले एमाने सांग सांग क्वेश्चन करिवा स्टार्ट करिवो गवर्नमेंट अगेंस्ट रे कि देश भितरे गवर्नमेंट भाबुची कि इनसाइड द कंट्री हमर एनिमी अछन, तो सिटीजन मानकु गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग एज एनिमी, तो जोटा गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करिवो. सो हमें आर्मी को एटी डिप्लॉय करि परिबा नाही, रादर जहां पैरामिलिटरी फोर्सेस अछन, स्टेट पुलिस अछन, हमें सेमानको कॉम्पिटेंट करि परिबा ए रीजन ने काम करिया पई, सेमानकर कैपेसिटी बिल्डिंग करि परिबा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फोर्सेस हमें करि परिबा. हला, सो दिस इज ऑल अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. हमें जानिले आज LW ऊपर तार इंट्रो देखिले, हिस्ट्री देखिले कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म केमते क्रिएट हेछि. नेक्स्ट हमें देखिले रीजन कोन, कॉज कोन, कोन पाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्रिएट हेछि एंड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हमें जहां भी देखिले विथ रेस्पेक्ट टू करंट अफेयर जहां दीटा रिसेंट थिला जो CIAT विषय रे कहली,
ये सब करंट रिलेटेड इश्यूज जहाँ को अमालगमेट करी मिसई की आंसर लिखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एलडब्ल्यूई हम गोटे कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कले एंड आई होप या ऊपर जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो समस्ते आंसर करि परिबे। डिफरेंस बिटवीन नक्सल एंड माओइस्ट किछि भी डिफरेंस नाही। ए मूवमेंट वेस्ट बेंगल लो नक्सलबारी विलेज रु 1967 ने स्टार्ट हेतिबा कारण को समान को नक्सल कहा जाए जेहेतु सेमाने चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ से तुमकर आइडियोलॉजी रे इन्फ्लुएंस्ड एई कारण पई समान को माओइस्ट बोली मते कहा जाए। स्लाइड ठीक अछि यार पीडीएफ मु प्रोवाइड कर देबी हैंडआउट मु दे देबी आई विल शेयर इन द ग्रुप।